Good evening. Good evening, everyone. The whole last day we were doing these tubes. If you say we can revise this, tubes एक बार शुरू से revise कर दूँ full, माने starting from open tube and closed tube both together. Fast revision. करबे? ठीक है चलो चलो एक बार revision. हाँ बोलो कर दी? एकदम ठीक चलो और एक बार revision because you can expect one question from this topic for sure in your exam. Not less than 5-6 marks. 1 mark short question, 2 marks short question, 2 marks numerical, like this. Okay. The idea was tubes where I'm doing a little faster. See, tubes contain air column and vibration of this air column can be of two types. Number one was closed tube. Number two is open tube. Now for closed tube, one end of the tube is closed, out of which this closed end forms a node. And for open tube like this, as both the ends are open, the node has to be somewhere at the middle. Why? Because the open mouth creates antinode. So here there are two open mouths, so there will be two antinodes at the two ends. So there must be a node in between somewhere here. Now keeping in mind all these things, if we draw incident wave and reflected wave which create a stationary wave. So this is one of the examples of stationary wave. In that case, a node has to be produced over here, an antinode at this point. So the waveform has to be like this, incident wave and the reflected wave. But for this, the incident wave and the reflected wave have to be like this, so that there is a node in between. And these two are antinodes. Okay, picture ठीक ठाक नहीं हुआ ऐसे, ठीक है. Now these were the minimum waveform for vibration of air column for closed tube, and this is also the minimum waveform for vibration of air column of an open tube. With these two things in mind, we got that fundamental frequency, that is minimum frequency obtained from this, was V by how many L, you have to tell me, and fundamental frequency of an open tube was given by V by how many L, you have to tell me. So we know that for closed tube it is V by 4L and for open tube it is V by 2L. This was a basic difference also, you can say. Why? Because in some questions there may be a theory which will ask you to prove that fundamental frequency in case of a closed tube, I am writing C here for closed, and fundamental frequency in case of an open tube, I am writing O here, that is open. So what we see, fundamental frequency N naught for an open tube is double, notice, is double the fundamental frequency N naught of a closed tube. N naught open, this one is double that of this, because if you multiply V by 4L into 2, V by 4L into 2, that gives you V by 2L. That means if a fundamental frequency of a closed tube is say 500 Hertz, then the fundamental frequency for an open tube of same length, remember this, length has to be same,
इन बोथ द केसेस. सो फॉर सेम लेंथ इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1000 हर्ट्ज. कौन सा फंडामेंटल, डबल होगा इसका फ्रीक्वेंसी. अदर थिंग्स this is one of the theories also, you can say. You will get 3 marks for this. So you need to do what? You need to draw a closed tube vibration minimum waveform and open tube vibration minimum waveform, and then find this and that and say that okay, this is double of that. How to do that? I'm again doing this. See, if I draw, this is a closed tube, closed tube, closed tube of same length. Okay. If we take 3 closed tubes of same length, again I am doing the theory for you as you said this. Sort of revision you can say. अरे छोटा बड़ा होता जा रहा है. हाँ. Now what happens? The logic again I am telling you. If any thread or any air column is stopped by some reflector like this closed part, wave will be produced here and will travel through this and will get reflected by this, and after that wave will come back following this path. Now out of this picture, look at this. From here to here, this is a complete wave. So it gives you a wavelength equal of length, that is lambda. लवंगो खाची गला अटके आ जाए. Anyway, if this is one loop only, a single loop, then this is lambda by 2. With this idea, if we see that there is a loop like this is the incident wave, and say after reflection, this is the reflected wave. So we can say that this length, this much, is a single loop like this. Now if you cut to half of this, आधा इसका उड़ा दिए, तो देखो तो अब क्या होगा. This is even half of a single loop. So this length will be lambda by 4, half of that loop. This length will be lambda by 4. So when you vibrate a tuning fork at the closed mouth, at the open mouth of the tube, then what happens? This waveform takes place, because इससे छोटा wave तो हो नहीं सकता है. So we draw this thing कि suppose कि ये एक wave आया reflect करके यहाँ से ये ऐसा निकल गया. So the length of this wave is how much? Lambda by 4. Just from this idea I have explained this. Now this lambda by 4 takes place within a length L of the air column. यहाँ पे जो एयर है ना, यहाँ पे ये एयर कॉलम कितना लेंथ का है? L. तो ऑब्वियसली L शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4, एंड इफ L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4, we can find lambda is given by 4L. Therefore, the frequency here, this is the minimum waveform. इससे छोटा वेव हो नहीं सकता. That means इससे छोटा और कम frequency हो नहीं सकता. So minimum frequency N naught will be given by V by lambda. Minimum frequency is called fundamental frequency. That's why I have written here N naught. This one. So that will be given by V by this 4L. That's why I had written in that page that frequency which is fundamental, that is minimum, is given by V by 4L. Look at this picture. See. This is the N naught. And this was the picture there. Okay. Then let us come here. Idea बता दे रहा हूँ. क्या होगा कि if you want to create a little more frequency, जोर से एयर को ब्लो करेंगे अगर, किसको? ये क्लोज ट्यूब का एयर को, यहाँ पे जो एयर है, तो क्या होगा? इट विल वाइब्रेट विथ मोर फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी का वेव फॉर्म देखने में कैसा होगा? हाउ वुड इट लुक लाइक? टेक्निक ये है, ड्रॉ वन लूप एक्स्ट्रा. एक लूप और बढ़ा दो. यही जो फॉर्म है, यही फॉर्म रहेगा यहाँ पे, पर नीचे एक लूप एक्स्ट्रा होगा. दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. ऐसा हो गया, और ये ऐसे जाके यहाँ पे टकराएगा
और ये रिफ्लेक्ट करके जब वापस जाएगा इट विल फॉलो दिस पाथ। ये इंसिडेंट वेव और ये रहा रिफ्लेक्टेड वेव। तो यहां पे क्या होगा, ऐसा शेप देखने में अगर हुआ, मैं तो बताया था हाफ ऑफ अ लूप, लूप तो खुद है लैम्डा बाई 2, उसका भी अगर आधा हो गया तो लैम्डा बाई 2 का हाफ कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4। सो दिस लेंथ इज लैम्डा बाई 4 ऑल द टाइम। यहां पे भी मैं लिखा लैम्डा बाई 4, और ये एक लूप है, दैट मीन्स लैम्डा बाई 2। एक भूल जो हो रहा है यहां पे, यू नो दैट इज अगर लैम्डा सेम ही रहा तो हाउ कैन यू accommodate an extra loop inside the same length of the air column? You cannot. तो क्योंकि तुम ज्यादा लूप ड्रॉ कर रहे हो अंदर, तो एक एक लूप का लेंथ छोटा छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स लैम्डा नाउ शुड डिक्रीज। सपोज ये लैम्डा को क्या बोलेंगे, लैम्डा डैश। याद रखना इसको, एग्जाम में लैम्डा लिख के मत आना। इफ यू हैव कंसिडर्ड वेव लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेव लैम्डा, तो सेकेंड केस में जब तुम ज्यादा वेव लेंथ ज्यादा लूप्स अंदर डाल रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लूप्स, तो उसका वेव लेंथ छोटा छोटा कर देना। तो कंसीडर दिस लैम्डा डैश। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट था, मैं सेपरेट कर दे रहा हूं। सो यहां से क्या देख रहे हैं कि एल जो लेंथ है उसी में ये लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 2 एक साथ हुआ है, दैट इज लैम्डा डैश। तो उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिलके, दोनों को मिला के हो जाएगा 3/4 लैम्डा डैश। हाफ और 1/4 मिला के 3/4 lambda dash. From this we get lambda dash is given by 4l by 3. नोटिस करो पिछला बार लैम्डा कितना था, 4l। इस बार कितना हो गया, देखो 1/3 हो गया। क्या, वेव लेंथ 4l का 1/3, 4l by 3 हो गया। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा आएगा। अब इससे ज्यादा आएगा, यहां पे कितना है देखो, v/4l। यहां पे क्या आ जाएगा, v बाय लैम्डा डैश करेंगे। अब लैम्डा डैश कितना है, ये पिक्चर में अभी निकाले हम लोग, सो वी कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर। v तो v रहेगा, लैम्डा डैश विल बी 4l by 3। 3 ऊपर उठ जाएगा, दैट मीन्स n1 विल बी गिवन बाय v डिवाइडेड बाय 4l इंटू 3। 3 ऊपर उठ गया, क्या हो गया, इंटू हो गया, इंटू 3। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से इट इज 3 times v/4l। अब v/4l है कितना, वो तो n0 है ना। v/4l को हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n0, तो ये 3n0 हो गया। सिमिलरली इफ वी ड्रॉ दिस पिक्चर, कौन सा ट्यूब वही ले लिए, उसका अंदर वाइब्रेटिंग एयर कॉलम का लेंथ कितना है, सेम l। ट्यूब वही है एल लेंथ का, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम वही है, बट दिस टाइम यू हैव टू एकोमोडेट 1 लूप फर्दर एक्स्ट्रा देन दिस। तो यहां पे तो एक आधा लूप था, अब एक लूप एक्स्ट्रा नीचे। अब क्या होगा, और एक लूप एक्स्ट्रा नीचे, ऐसे। कीप इन माइंड दैट दिस लूप शुड टच दिस बाउंड्री ऑफ द ट्यूब, ऐसा करना। So here from this picture what we can see, ये तो लैम्डा बाय 4 होगा, ये लैम्डा बाय 2, एक लूप, दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाय 2 हो गया। फिर से क्या भूल हो रहा है कि अगेन वी आर टेकिंग वेव लेंथ ऑफ वन वेव टू बी लैम्डा। तो यहां पे लैम्डा डैश बन गया, वहां पे लैम्डा और छोटा छोटा होना चाहिए। क्यों, वी आर एकोमोडेटिंग मोर लूप्स इनसाइड द सेम लेंथ ऑफ द ट्यूब। उसलिए क्या करेंगे, इसको लैम्डा डबल डैश ऐसे बोल दिया। अब कैलकुलेट करके देखो, हाफ और 1/4 फ्रैक्शन को देखो, ये तीनों मिला के 5/4 हो जाएगा। सो L विल बी गिवन बाय 5/4 टाइम्स ऑफ लैम्डा डबल डैश, एंड फ्रॉम दिस वी गेट लैम्डा डबल डैश इक्वल्स टू 4L by 5। फिर से नोटिस करो कि दिस टाइम यू गेट वेव लेंथ 1/5 of 4L। फर्स्ट केस लैम्डा 4L, इस केस में लैम्डा 4L by 5। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेव लेंथ अगर कम हो जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। कैसे, तो इस फ्रीक्वेंसी को n डबल डैश बोल रहा हूं, यहां पे n1 बोला था तो इसको तब n2 बोल रहा हूं।
वो कितना हो जाएगा, v बाय जो भी वेवलेंथ बन रहा है, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो v बाय लैम्डा डबल डैश दैट इज इक्वल टू v बाय 4l बाय 5, दैट इज v बाय 4l इंटू 5। अब v बाय 4l माने है कितना, n नॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, दिस वुड बी n2 इज गिवन बाय 5n नॉट। अब ये फ्रीक्वेंसीज को नोटिस करो, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना हुआ था, n नॉट, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, ये तो एक्सप्लेनेटरी पार्ट था, इसको छोड़ दो। यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, n1, वो हो गया 3n नॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स। यहां पे क्या हो गया, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया 5n नॉट, दैट मीन्स यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं सेपरेटली 5n नॉट। अब तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, थ्योरी खत्म हो गया, लेकिन बोल दो इसका नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी शुड बी 1n नॉट, 3n नॉट, 5n नॉट, 7n नॉट एंड देन 9n नॉट। यस, 7n नॉट, 9n नॉट, 11n नॉट चलता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लोज ट्यूब का ऐसे एक हेडिंग दे दो, क्लोज्ड ट्यूब, जितना लिखोगे याद रहेगा। क्लोज ट्यूब का फ्रीक्वेंसी का सीरीज ऐसा हुआ, n नॉट, 3n नॉट, 5n नॉट, 7n नॉट, ऐसे करके चलता रहेगा। दैट मीन्स ओनली, ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, ओनली ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बाय द वे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n नॉट, इसका मल्टीपल्स को क्या बोलते हैं, व्हिच टर्म डिनोट्स दिस मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। n नॉट का 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना भी टाइम्स हो जाए उसको क्या बोलते हैं, h से शुरू होता है, यस, हार्मोनिक। सो ओनली odd harmonics are present in the vibration of air column for a closed tube। ये है थ्योरी, इसका प्रूफ ये पेज में है। पहले आता था 4 मार्क्स का, अभी भी आ सकता है, बाकी 3 मार्क्स तो फॉर श्योर। ये थ्योरी 3 पिक्चर ड्रॉ किए, तीनों का n निकाले, 3 मार्क्स, लेकिन लास्ट में सीरीज लिख के आना जरूर, ठीक है। दैट वाज द रिविजन पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द सेम थिंग फॉर एन ओपन ट्यूब, तो ओपन ट्यूब का क्या होगा वो एक बार कर लेते हैं। ओपन ट्यूब मेरे साथ साथ करो, हाँ, क्योंकि देखने से बेटर है लिखना। देखो प्लस लिखो प्लस समझो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज मुझे पूछो, बिकॉज ये तो रिविजन चल रहा है। आस्क मी दैट क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। तो देखो, फर्स्ट ओपन ट्यूब ऐसे ड्रॉ किए, ये ओपन ट्यूब का ये दोनों ऐसा ऐसा कर देना, सो दैट दे गिव अस द एंड्स। अब क्या है कि एक वेव ऐसा करके लाके ऐसे लेके आना, और इसका ऐसे लाके ऐसे लेके आना। मैं तो आइडिया बोल दिया, और ये भी शायद बोलना मैं भूल गया कि पिक्चर बहुत ही खराब आएगा एज मेरा आया है। बाकी यू हैव टू गो ट्राई एंड एरर, पेंसिल से बेटर होता है एनीवे। ऐसे चलो मोटा मोटी ठीक है। सो इसका ट्यूब का एयर कॉलम का लेंथ L है। ऑलवेज मेंशन करना, कभी भी मत लिखना लेंथ ऑफ द ट्यूब L है, डोंट राइट दैट। तो क्या लिखना है, लिखना है लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब का अंदर जो एयर कॉलम है उसका लेंथ है L, ठीक है। तो ये लेंथ में से चलो सेम आइडिया बनाते हैं, L बाई लैम्डा बाई 4 होगा तो ये। सो फर्स्ट पिक्चर से हम लोग को ये मिल रहा है क्या ना, L इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, दोनों का ऐड करने से कितना आता है, लैम्डा बाई 2। फ्रॉम दिस वी कैन इजीली फाइंड लैम्डा, हाउ मच, 2L। इस बार देखो लैम्डा कितना आ रहा है, 2L। पिछला बार कितना आया था देखो, 4L। ये देखो कहाँ गया, ये देखो 4L आया था फर्स्ट वाला, इसमें कितना आ रहा है देखो, 2L आ रहा है, शुरू ही हो रहा है 2L से। देयरफॉर
जो शुरू का फ्रीक्वेंसी है दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट शुड बी गिवन बाय v बाय लैम्डा। जो भी हो लैम्डा का वैल्यू होगा फॉर्मूला v बाय लैम्डा, n इक्वल्स टू बस। तो v रहेगा, लैम्डा का बदले में कितना लिख देंगे, ये 2l। दैट मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वुड बी गिवन बाय फॉर एन ओपन ट्यूब v बाय 2l। फर्स्ट पिक्चर हो गया, ये फिगर 1 है ना। सिमिलरली सेम लेंथ लेना, लेकिन हाँ डू नॉट इंक्रीज द लेंथ। मेरा ज्यादा हो गया क्या इस बार? पिछला बार छोटा था, इस बार ज्यादा हो गया ना, ज्यादा नहीं लेंगे, सेम लेंथ का लेना। तुम लोग साइड साइड में ऐसे तीनों पिक्चर को ड्रॉ कर देना और नीचे नीचे डेरिवेशन कर देना कॉलम करके, जैसे वी हैव जस्ट डन। तो इसका क्या होगा, अब ये तो होगा ही होगा, ये ओपन माउथ है, ऐसा होगा ही होगा। तो बीच में क्या होना है, बीच में एक लूप एक्स्ट्रा होना है। क्यों? क्योंकि अगर हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इस पिक्चर से कुछ तो अलग होगा। क्या अलग होगा? ये दोनों को टान के बोलेंगे भाई साहब थोड़ा बीच में जगह दो। क्यों? क्योंकि और एक वेव का लूप अंदर आने वाला है, देन ओनली यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिमाग में रखो, इसका बीच में और एक वेवलेंथ और एक लूप एक्स्ट्रा ड्रॉ करना, लाइक दिस। शायद ये ठीक ठाक ड्रॉ करने में मुझे कुछ दिनों या तो महीने लग जाए, बट तुम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम हॉल में। ऐसे और कॉपी में ड्रॉ करना इजी होता है, ये साइड से ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलो ऐसे मोटा मोटी थोड़ा मोटा करके ड्रॉ कर दिए इसको। नाउ द लेंथ रिमेन्स द सेम एल, ओके, बट इस बार लैम्डा बाय 4, एक लूप लैम्डा बाय 2, हाफ लूप लैम्डा बाय 4। ये जो मैं लिखा हूं ये पिक्चर में क्या एरर है, कोई बता सकता है कि फिर से मैं कुछ गलती कर दिया कंपेयर टू द लास्ट पिक्चर? अरे वाह, वेरी गुड, ये तो सीख रहा हूं। तो पिछला बार लैम्डा लिया था, इस बार तो लैम्डा शुड बी शॉर्टर, लैम्डा डैश समथिंग डिफरेंट। तो फ्रॉम दिस वी कैन से एल इक्वल्स टू 1/4 1/4 हाफ। तो 1/4 1/4 हाफ हुआ और ये हाफ मिला के 1, दैट मीन्स ओनली लैम्डा डैश। सो फ्रॉम दिस n1 नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, भाई फ्रीक्वेंसी तो यही होगा। हाँ बोलो, वांट टू से एनीथिंग? ओके, ये तो यही होगा v बाय लैम्डा डैश, n डैश इक्वल्स टू। अब देखो v बाय लैम्डा डैश, v तो v रहेगा, लैम्डा डैश कितना हो चुका है l, तो इस बार जो फ्रीक्वेंसी होगा वो v बाय l। बट वी विल ऑलवेज ट्राई टू रिलेट दैट वैल्यू टू दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका साथ रिलेट करना चाहता हूं, दैट मीन्स n नॉट का कितना टाइम्स है। तो n नॉट था कितना, तो n नॉट तो था v बाय 2l, तो v बाय 2l लिख दिया। इनटू कितना करने से v बाय l होगा, इनटू 2 करने से। दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड that it is double the frequency of the fundamental one, that is minimum frequency का। okay, figure 2 हो गया। now comes figure 3। तो figure 3 में क्या है, you can easily understand same length का ट्यूब ड्रॉ करना, और टास्क थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा ये लंबा हो गया, चलो चलेगा। सेम लेंथ का ट्यूब ड्रॉ कर लिया, ठीक ही है मोटा मोटी, फिर भी ये हुआ। तो अब क्या करना है, ये ऊपर में नीचे में तो ऐसा होगा ही होगा, ऊपर में नीचे में ऐसा होगा ही होगा। फिर बीच में ना दो दो लूप ड्रॉ करना है भी, एक लूप फिर ये एक लूप। एस लिख दिए, एस स्पाइडरमैन वाला एस लिख दो। फिर क्या है कि उस साइड का भी ऐसा ही करो, उल्टा एस लिख दो। ओह व्हाट अ पिक्चर, व्हाट अ पिक्चर, कैनॉट बिलीव माई आईज। एनीवे चलो हो गया, एक बार में बिना इरेज किए। चलो इसमें क्या लिखूं, लेट मी राइट दिस, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 4। अब फिर से मैं भूल कर दिया, अब तुमसे पूछूंगा नहीं कि क्या भूल हुआ है, मैं खुद ही ठीक कर दूंगा इसको। लैम्डा डबल डैश, लैम्डा डबल डैश होगा। So if this takes place within the same length L, now this time we can say that L is
फ्रैक्शन का देखो 1/4 हाफ हाफ 1 और ये 1/4 हाफ, ऊपर नीचे हाफ और बीच में दोनों मिलके 1, 1 प्लस हाफ माने 3/2। From this we can find that lambda double dash is given by 2l/3। देख रहे हो लैम्डा डबल डैश ना, फर्स्ट बार आया था 2l, इस बार क्या आ गया उसका 1/3। तो अगर वेवलेंथ 1/3 हो जाता, आइडिया को समझो, फ्रीक्वेंसी विल बी 3 टाइम्स। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी v इक्वल्स टू जो n लैम्डा होता है ना, इफ यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लैम्डा n विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। तो लैम्डा इस बार हो गया 2l/3, 1/3, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है ना n, वो 3 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा चलो करके देखते हैं, इसको फिलहाल हटाते हैं। सो क्योंकि 2l/3 हो गया देखो लैम्डा डैश, सो देयरफॉर यहां पे लिख सकता हूं कि देयरफॉर n2, पिछला बार n1 था, इस बार और हायर फ्रीक्वेंसी होगा n2, वो कितना हो जाएगा v बाय लैम्डा डैश, लैम्डा डबल डैश। सो v बाय 2l/3, देयरफॉर n2 इक्वल्स टू v बाई 2l आ गया, और 3 साइड में मल्टीप्लाई हो गया। दैट मीन्स क्या आ रहा है, n2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स n0, बिकॉज v बाई 2l और कोई नहीं n0 है। तो इस बार n2 आया 3n0, n1 आया 2n0, और खुद तो फंडामेंटल वाला n0 था ही। तो इसमें सीरीज क्या आया, लेट अस राइट दैट। सो ओपन ट्यूब में, ओपन ट्यूब का वाइब्रेशन में द सीरीज दैट वी ऑब्टेन इज n0, सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी आया था 2n0, थर्ड हायर फ्रीक्वेंसी आया था 3n0, तो फोर्थ हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगा 4n0, फिफ्थ हायर इससे भी हायर 5n0। ऐसे कैसे बोल दिए कि 5n0, 3n0, 4n0, ये कैसे बोल रहा हूं? ऐसे बोल रहा हूं कि सीरीज को देख लेता हूं। फर्स्ट टर्म आया n0 v बाई 2l, सेकेंड टर्म 2n0, 2 इज एन इवन नंबर। थर्ड आया 3n0, 3 क्या है, ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर। तो इसका इवन मल्टीपल भी आ रहा है, ऑड मल्टीपल भी आ रहा है। दैट मीन्स वी शुड राइट बोथ और कीप ऑन राइटिंग बोथ। तो मैं दोनों ही लिखना शुरू किया। ये n0 माने तो 1 इंटू n0, 2 इंटू n0, 3 इंटू n0, 4 इंटू n0 भी होगा, फिर 5 इंटू n0 भी होगा, फिर 6 इंटू n0 भी होगा। सो फॉर ओपन ट्यूब इसका वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसीज आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी कौन है, n0 को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, और ये सब उसका सिंपल मल्टीपल्स है, दैट मीन्स हार्मोनिक्स। सो यहां पे बोथ ऑड एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये ऑड एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक। तो इसका ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड इसका साथ साथ, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसका साथ साथ और एक आइडिया भी चाहिए टू बिकम कंप्लीटली पावरफुल टू डू न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस टॉपिक्स। क्या कि इफ आई राइट कि सपोज ये एक थाली है, हाथ से गिर गया थाली, मैं बोला था शायद, ये फिर से बता रहा हूं, इफ दिस इज अ प्लेट एंड इफ इट फॉल्स फ्रॉम हैंड, सपोज इससे ना तरह तरह के साउंड्स निकलने शुरू हो गए। लाइक suppose it is producing frequencies like this, 50 hertz, then 100 hertz, then 174 hertz। ना सीरीज मैच नहीं किया, आई अंडरस्टैंड दैट। फिर क्या हुआ 200 hertz, फिर क्या हुआ 400 hertz, फिर क्या हुआ कि 400
10 हर्ट्ज, ऐसा करके, ठीक है। तो these are the frequencies present from vibration of this dish when falls on ground, आर्टिस्टिक टच दे दिया और कुछ नहीं। देन कलर भी आर्टिस्टिक ले लेता हूँ, कौन सा कलर, ये कलर ले लेता हूँ। देन ये बताओ कि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दिस सीरीज? यस, राइट आंसर 50 हर्ट्ज। अरे धीरे धीरे क्लास 12 हो जाएगा ना, योर वॉइसेस विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि आई नो दिस, योर वॉइस विल टेल इट। देखना ठीक होगा, जस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, पेशेंस रखो। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। बोलो तो थर्ड ओवरटोन कितना होगा इसका? 200. Very good. Who said that? 200. It's a common voice, but I cannot recognize. Sir, Ayush. Ayush, very good. Question number 1. Fundamental frequency is the minimum frequency. With that idea, we understand this is 50 hertz. Fundamental frequency छोड़ के इसका ओवर माने मोर देन दैट, कौन सा फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है इसको छोड़ के, ये ऑल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज, ये जो एरो दे रहा हूं, ऑल ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज, ये सारे हैं ओवरटोन्स। क्यों? उससे ओवर है, ओवर माने ज्यादा। सो दीज फ्रीक्वेंसीज ऑल आर कॉल्ड ओवरटोन्स। टोन माने क्या? टोन माने एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का साउंड को बोलते हैं टोन, और नोट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल टोन्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड, उसको बोलते हैं नोट। तो ये एक एक टोन जो है वो सारे ओवर टोन है, मतलब ये फ्रीक्वेंसीज ओवर मतलब मोर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, दैट्स व्हाई दीज आर ऑल कॉल्ड ओवरटोन्स। ठीक है। सो ओवरटोन्स का गिनती कहां से शुरू होना चाहिए, दैट इज द थिंग। फर्स्ट ओवरटोन ये है फर्स्ट ओवरटोन। सो गिनती शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो है 100 होगा फर्स्ट ओवरटोन, ये होगा सेकेंड ओवरटोन, उसका बाद जो होगा, सो 200 शुड बी द थर्ड ओवरटोन। सो क्वेश्चन में क्या है? थर्ड ओवरटोन, इट शुड बी 200 हर्ट्ज। ठीक, नाउ लेट अस कम टू अनदर स्मार्ट कलर, कुछ ले लेता हूं ऐसा करके, ये। तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी थर्ड, चलो थर्ड ही लेता हूं। व्हाट शुड बी द थर्ड हार्मोनिक, बताओ। 174. थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक का क्या माने बताए यहां से? हार्मोनिक माने क्या है? व्हिच आर सिंपल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सिंपल मल्टीपल, 200 hertz. सिंपल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो 200 हर्ट्ज आंसर किए, एकदम करेक्ट किए। Simple multiple 174 is not a multiple, simple multiple of 50, so इसको नहीं लेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज भाई हार्मोनिक का गिनती कहां से शुरू करेंगे? तो याद रखना, मैं साइड में लिख देता हूं, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम, कुछ बुक्स में ये गलत दिया हुआ रहता है, उससे बच कर रहियो। कुछ बुक्स में मैं देखा हूं हार्मोनिक का गिनती शुरू होना चाहिए एन नॉट से ही, दैट मीन्स फंडामेंटल ही अपना एक हार्मोनिक है। क्यों? बिकॉज एन नॉट इक्वल्स टू एन नॉट इंटू 1, सो एन नॉट का 1 टाइम एन नॉट खुद है, दैट मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही फर्स्ट हार्मोनिक है उसका। सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एन नॉट इटसेल्फ। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे कौन है? 50 हर्ट्ज। ये होगा फर्स्ट हार्मोनिक। शुड, इसका काउंटिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम एन नॉट, दैट इज 50। सो 50 होगा फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक।